السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، سعودی عرب کی آج کی فٹافٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں ثاقب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی۔ سعودی عرب میں دونوں پاک مسجدوں کے مینجمنٹ کمیٹی کے پرمکھ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے کہا کہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں رمضان کے دوران افطار کا دسترخوان نہیں لگے گا، ساتھ ہی اعتکاف پر بھی پابندی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال دونوں پاک مسجدوں کے لیے رمضان پروگرام کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو SOPs ہیں ان کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر سدیس نے کہا کہ زائرین کورونا SOPs کی پابندی کرے، ویکسین بھی لگوائے، ساتھ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پالن کرے، خود کی اور دوسرے عمرہ زائرین کی صحت اور سلامتی کے لیے نوز ماسک بھی پہنے۔ حرمین شریفین مینجمنٹ کمیٹی کے پرمکھ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے دونوں پاک مسجدوں کے لیے رمضان آپریشنل پروگرام 1442 ہجری سے سمبندھت جانکاری کا اعلان وارشک ورچوئل کانفرنس کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افطار کے دسترخوان اور اعتکاف پر پابندی رہے گی۔ مطاف کے صحن کا ایک حصہ عمرہ زائرین کے لیے ریزرو ہوگا، جبکہ مسجد الحرام میں 5 مصلے ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پوروی صحنوں میں بھی نماز کے لیے صفیں بچھائی جائیں گی۔ السدیس نے آگے بتایا کہ دونوں پاک مسجدوں کی مینجمنٹ کمیٹی حرم زائرین کے لیے مکہ مکرمہ گورنریٹ کی مدد سے افطار کے پیکٹ کی تیاری کر رہی ہے، یعنی جو افطار کا دسترخوان لگتا تھا وہ نہیں لگے گا، لیکن جو کوئی افطار میں حصہ لینا چاہے وہ پیکٹ ایک ایک کر کے بندوں میں چاہے تو بانٹ سکتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندرونی باہری صحنوں اور دالانوں میں کہیں بھی زائرین اور نمازیوں کو سحری اور افطار کے پیکٹ بانٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب کی رائل آرمی نے خبیث مشہد کو نشانہ بنانے کے لیے داغے جانے والا حوثی ڈرون مار گرایا ہے۔ سب اخبار کے مطابق عرب جوائنٹ فورس کا کہنا ہے کہ حوثی نے اتوار کو ایک اور بارود بھرا ڈرون بھیجا تھا، جسے ہوا میں ہی ناکام بنا دیا گیا۔ دوسری طرف عرب جوائنٹ فورس کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا کی طرف سے حملوں کے لیے تیار کیے گئے 2 بمبار ڈرون اور بارود سے لدی 2 کشتیاں بھی ناکام بنا دی گئی ہے۔ یہ ڈرون سعودی عرب کے دکشنی علاقے کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ بارودی کشتیاں الحدیدہ میں ایک کارروائی کے دوران تباہ کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی پربند کمیٹی نے رمضان کے دوران کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اور زیادہ سخت قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پربند کمیٹی نے اتوار کو اپنے بیان میں بتایا کہ مسجد نبوی میں تراویح کی 10 رکعت ہوں گی اور نماز کے آدھے گھنٹے بعد مسجد بند کر دی جائے گی۔ مسجد نبوی کی مینجمنٹ کمیٹی کا کہنا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد لانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ مسجد نبوی اور اس کے صحنوں بلکہ مسجد کے کسی بھی حصے میں سحری اور افطار کے پیکٹ بھی بانٹنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ مسجد نبوی کے اندر بھی اعتکاف پر پابندی لگائی گئی ہے، اعتکاف میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ ساتھ ہی افطار اور سحری کے لیے مینجمنٹ کمیٹی بات کر رہے سمبندھت وبھاگوں کے ساتھ کہ افطار اور سحری کے پیکٹ بھی الگ الگ کر کے لوگوں کو بانٹے جائے، یعنی افطار کا دسترخوان مسجد الحرام کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں بھی اس بار نہیں لگے گا۔ نمازیوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اور نوز ماسک کی پابندی کرنی ہوگی۔ روزہ داروں کو اگر افطار کرنا ہے تو گروپ میں افطار نہیں کریں گے، الگ الگ جگہ بیٹھ کر افطار کر سکتے ہیں۔ افطار میں کھجور اور پانی استعمال کریں گے، یعنی کھانا وغیرہ مسجد نبوی کے اندر نہیں کھا سکیں گے۔ مسجد نبوی کی پارکنگ سے نکلتے وقت موقف نام کی اپلیکیشن استعمال کرنی ہوگی۔ سعودی عرب میں کوئی شخص اگر اپنی فیملی رکھتا ہو اور فیملی ممبر میں سے کوئی ایک بندہ فیملی ویزا سے ہٹ کر مین ویزا پر یعنی اقامے پر اگر جانا چاہے، یعنی آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں ایسا قانون موجود ہے کہ فیملی ویزا پر رہنے والے اگر سعودی عرب میں جاب کرنا چاہیں اور ان کی جاب لگ جاتی ہے تو اپنا اقامہ جو ہے وہ فیملی سے ہٹا کر اور اس کمپنی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی استھتی بن جاتی ہے کہ فیملی ویزا سے ہٹ کر اس کو کمپنی کے اندر ٹرانسفر لینا ہے، تو ایسے میں جوازات سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر اقامے کی فیس پہلے سے جمع کر دی ہو سال بھر کی، تو کیا فیس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ تو اس پر جوازات کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ اقامے کی فیس ایک بار اگر جمع ہو جاتی ہے تو اس کو واپس ہونے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، لیکن اگر فیس جمع کر دی ہو اور اقامے کی کارروائی عمل میں نہ آئی ہو، یعنی اقامہ جاری نہیں ہوا ہے، تو اس ٹائم تک فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سال 2017 تک فیملی فیس 100 ریال پرتی مہینہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ یعنی ہر سال اس کو بڑھا کر فی الحال 2021 میں 400 ریال پرتی مہینے سعودی عرب میں فیملی رکھنے کی فیس دینی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جوازات سے ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو ایسے میں کیا خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ تو اس پر جوازات کا کہنا ہے کہ
खरूज न्याय लगाने के लिए पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन होने ज़रूरी है। 60 दिन से अगर कम का टाइम पासपोर्ट पर मौजूद है तो खरूज न्याय नहीं लगेगा। साथ ही अगर कोई पासपोर्ट रिन्यू कराता है तो जवाजात के सिस्टम में उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कराना ज़रूरी होगी, जिसको अरबी में नकल मालूमात बोलते हैं। अगर नकल मालूमात नहीं होती है तो जो आपका खरूज लगेगा वो पुराने पासपोर्ट पर लग जाता है और कई बार ऐसे बंदों को एयरपोर्ट से लौटना पड़ जाता है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि इतवार को सिर्फ एक नमाजी में कोरोना पाए जाने पर तबूक में एक मस्जिद को टेम्परेरी बंद किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक बीते 49 दिनों के दौरान बंद की जाने वाली मस्जिदों की तादाद 382 तक पहुंच गई है, जबकि इनमें से 373 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोला जा चुका है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि इतवार को सऊदी अरब में सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद 9 मस्जिदें दोबारा खोली गई है। इनमें से 3 रियाज रीजन, 4 कसीम, तबूक और अलजोफ रीजनों से है। आज अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ने अपने बयान में आगे कहा कि सऊदी भर की मस्जिदों में 1,67,000 से ज़्यादा चेकिंग कार्रवाइयाँ की गई है ताकि ये पता लगा जा सके कि SOPs की पाबंदी हो रही है या नहीं। मिनिस्ट्री की चेकिंग टीम ने जांच के दौरान 204 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड किए गए वायलेशन में मास्क न पहनना, जानमाज साथ न लाना, सोशल डिस्टेंसिंग न बनाए रखना, नमाज के टाइम की पाबंदी न होना, मस्जिदें खोलने के सिलसिले में मिनिस्ट्री गाइडलाइंस को फॉलो न करना, इस तरह के वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ने फिर से लोगों से अपील की है कि वो जहां के भी कोरोना SOPs की पाबंदी न होते हुए देखें तो फौरन ही 1933 यानी 1933 नंबर पर कॉल करके हमें खबर करें। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 29 मार्च यानी सोमवार के लिए सऊदी अरब के मौसम के बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को जाजा, नसीर और बाहा के ऊपरी इलाकों पर तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है। इनका सिलसिला मक्का मुकर्रमा तक फैल जाएगा। नेशनल सेंटर का कहना है कि तेज़ रेतीली हवाओं से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हवाओं से रियाज, ईस्टर्न रीजनों के अलावा असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक भी प्रभावित होंगे। बयान में आगे कहा गया है कि तेज़ हवाओं से तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और ईस्टर्न रीजन के समुद्र तटीय इलाके प्रभावित होंगे। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि सोमवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 36 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड अल करियात में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटे के दौरान 531 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 389 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है। 7 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,650 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 4,728 हो गई, जिनमें से 638 क्रिटिकल केस जो कि ICU में इलाज के लिए 531 नए कोरोना के मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,88,325 हो गई है, जबकि 389 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद बढ़कर 3,76,947 हो गई है। सऊदी अरब में ब्रिटेन के एम्बेसडर नील क्रॉम्पटन ने कहा कि ब्रिटेन समझता है कि सऊदी अरब पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा ईरान से बना हुआ है। ब्रिटेन के एम्बेसडर ने कहा कि हूथियों के हमले के खिलाफ हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि तेल रिफाइनरी पर हमले संगीन स्थिति पैदा करते हैं। औकाज़ अखबार को इंटरव्यू देते हुए ब्रिटेन के एम्बेसडर का कहना था कि हमें पता है कि हूथियों को जो हथियार मिल रहे हैं वो ईरान के दिए हुए हैं। ये हूथियों की तरफ से स्थिति को बेहद खतरनाक बनाने वाली बात है। आगे ब्रिटेन के एम्बेसडर कहते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से जो अमन फार्मूला पेश किया गया है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और जंग को ख़त्म करने के लिए, वो भी हूथियों ने कबूल नहीं किया, यानी कोई प्रतिक्रिया हूथियों की तरफ से उस पर नहीं दी गई है। नील क्रॉम्पटन ने आगे कहा कि सऊदी अरब और ब्रिटेन के ताल्लुक ऐतिहासिक और बहुत मजबूत है और हाल फिलहाल तो ताल्लुकात पहले से भी ज़्यादा अच्छे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट सऊदी विजन 2030 की सपोर्ट करती है। ब्रिटेन और सऊदी अरब के बीच में बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं। 18,000 सऊदी स्टूडेंट ब्रिटेन में पढ़ाई करते हैं, जबकि 20,000 से ज़्यादा ब्रिटेन के सिटीजन सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय कहना है कि 21 से 27 मार्च तक एक हफ्ते के दौरान बचाव के लिए बनाई गई SOPs की 30,306 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। आज अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्विटर अपने बयान में कहा कि सबसे ज़्यादा वायलेशन 9,915 रियाज रीजन, मक्का मुकर्रमा रीजन 7,222, ईस्टर्न रीजन में 4,112 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। कसीम में 2,375, मदीना मुनव्वरा में 1,697 और अलजौफ में 1,241 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। तबूक में 861, बाहा में 746, असीर में 676, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 606, हाइल में 597, जाजान रीजन में 181 और नजरान रीजन में
77 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने एक बार फिर से सऊदी शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को हिदायत की है कि वो संबंधित विभागों की तरफ से बनाई गई SOPs पर पूरी तरह से पाबंदी करे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और जुर्माने लगाए जाएंगे। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अबदाली ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में वायरस लगने की घटनाएं न होने के बराबर है। अल अबदाली बीते दिन यानी इतवार को कोविड-19 के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जरिया बचा है, वो वैक्सीन है। वैक्सीन सभी के लिए ज़रूरी है। अगर सब लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो अपने आप को कोरोना से सुरक्षित समझ सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि अब तक कोरोना वैक्सीन की 40 लाख से ज़्यादा खुराकें लोगों को दी जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से सऊदी शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों के लिए वैक्सीन फ्री लगाने का इंतजाम किया गया है, जिसके लिए सेहती एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करना होता है। लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए रुझान पैदा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से कैंपेन चलाए जा रहे हैं। लोगों को तरह तरह की स्कीमें बताई जा रही ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कुछ सेक्टर के अंदर डेडलाइन भी वैक्सीन के लिए रखी गई है, जैसा कि हमने बीते दिन भी आपको बताया था। जाजान ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ट्रैफिक वायलेशन करके उसे स्नैपचैट पर शेयर करने वाली सऊदी औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबक अखबार के मुताबिक ट्रैफिक विभाग का कहना है कि गिरफ्तार की गई सऊदी औरत स्नैपचैट पर काफ़ी शोहरत रखती है। उन्होंने तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने और भी कई तरह के वायलेशन करने के साथ साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फख्र के साथ अपलोड की थी। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि वीडियो वायरल होते ही संबंधित विभाग को हिदायत की गई कि इस औरत को गिरफ्तार करके ट्रैफिक कानून के मुताबिक सजा दी जाए। फिलहाल सऊदी औरत ट्रैफिक अथॉरिटी की हिरासत में है। इनसे पूछताछ अभी जारी है, जबकि ट्रैफिक कानून के मुताबिक इन पर जुर्माने और सजा होगी। और अंत में सऊदी अरब में जाजान रीजन की ही एक औरत ने तलाक के बाद अनोखा बदला लेते हुए पुराने शौहर के सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए हैं। अल वतन अखबार के मुताबिक तलाक होने से पहले शौहर ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी काम में बीवी की मदद लेता था और सभी तरह के पासवर्ड उसको बता दिए थे। उसके अकाउंट में जब कोई खराबी वगैरह आती तब भी वो बीवी की मदद लेकर उसको ठीक करता था। तलाक के बाद सऊदी ये देखकर हैरत में पड़ गया कि वो अपने अकाउंट अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने मजबूर होकर नया अकाउंट बनाए और अपने दोस्तों को नए अकाउंट्स पर ट्रांसफर कर लिया। सऊदी कानून के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर पुराना शौहर ये इल्ज़ाम साबित करने में कामयाब हो गया कि उसकी बीवी ने उसके अकाउंट हैक किए हैं और अपने अकाउंट इस्तेमाल करने से रोका है, तो उस पर 1 साल तक कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इंफॉर्मेशन क्राइम्स के कानून में ये सज़ा रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि इन दिनों सऊदी अदालतों में ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं जिसमें बीवियों की तरफ से शौहरों के मोबाइल की तलाशी ली जाती है, जिससे रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है और आखिर में तलाक वगैरह के केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।